Galvanometer is 0. Can you check this? हाँ? Yes, जब तुमने हिलाया, can you see the flux? Can you see the blue lines? Can you see the Yes, blue lines? Those are magnetic flux. Magnetic flux मतलब magnetic field line. Yes. हमें दिखते नहीं है ना वो बस कंपास से ही दिखता है. Yes, no, that you cannot see. Okay. As a result, EMF is induced in the emitter. This in turn produces an electric current to the emitter and the galvanometer and to the flip ring on the front. Note that the galvanometer measures swings between the negative and positive values. This means that an alternating current is flowing through the galvanometer. So I hope you understood that an alternating current is flowing through the galvanometer because it is showing negative, positive, negative, positive. Did you understand that? yes, ma'am. Now I'll be showing you this. Okay. So, okay. Now video say, I don't know how you'll understand, but understand from this perspective, A to B. Okay. Okay, let's see the video and then I'll explain you. See, they are showing it that from A to B, C to D. A is pointing towards U, B and C, D. Okay, now see. The direction of magnetic field is from left to right. As the aperture undergoes left to right. Can you show your left right hand? Right hand में कर सकते हो क्या? एक मिनट हाँ. ओके ओके ऐसे करो. सी ये जो है ना दिस फिंगर द फोर फिंगर नॉर्थ से साउथ. अभी मेरे सामने नॉर्थ दिख रहा है ना, तो मैंने नॉर्थ से साउथ किया. दिस फिंगर इज नॉर्थ टू साउथ. ओके एंड यू आर मूविंग डाउन. तो करंट विल बी दिस इज माय करंट. ओके दिस विल बी माय करंट. ओके तो ऐसे फ्लो हो रहा है. तो इट विल बी इनसाइड. द करंट इज गोइंग इनसाइड. ओके नाउ यहाँ पे उन्होंने क्या किया है? ओके सो ऐसे करके मूव हो रहा है. So see, notice here what is happening here. Okay, see the conductor, this thing, the change in the magnetic flux. ये ऐसे ऊपर से नीचे हो रहा है. Understand change in the direction वो बाद में देख लेते हैं. पहले ये समझो कि ये ऊपर नीचे हो रहा है. Now just I'll show you my thing. Okay. Okay. Now मैंने यहाँ पे ये किया है. Can you see B to A? दिख रहा है तुमको? A to B, C to D. Can you see this? Okay. Now B is towards you. Can you see this? B is towards you. Okay. So now in this what happens? एक मिनट. I have to change my video से कुछ नहीं समझ में आता है. Okay. So ऐसा presume करो कि this is my north side, this is my south side. Okay. Now when I'm holding my armature straight. Okay. So what is my angle? What is my angle? This is my angle 0. Okay. So this is my initially angle. Now when I'm placing the this as straight line, मतलब perpendicular रखती हूँ तो क्या होता है? There will be lot of magnetic field line coming out. Okay. Magnetic field line will be lot of magnetic field line will come out. अब मैंने क्या किया? इसको ऐसे कर दिया. मतलब I have moved from 0 to 90. 90 हिलता है. Okay. So 0 किया, 0 से 90 किया. What will happen? The magnetic field lines are going. थोड़े ऊपर से जा रहे, थोड़े नीचे से जा रहे. So what will happen? The change in the magnetic flux will decrease. यहाँ पे कितना था? सोचो 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस था. जब मैं ऐसे 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 करके हिलाने लग गई तो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस क्या हो गए? 0 हो गए. कुछ समझ में आ रहा है? देन अगेन आई एम मूविंग. यहाँ पे हो गया. सो इट विल, ये क्या है? 0, 90, 180. 180 करते टाइम देखो, पहले देखो क्या था? ए और बी ऊपर की तरफ था. कैन यू सी? ए और बी ऊपर की तरफ था. इतना इंडेप्थ नहीं पढ़ने की जरूरत है बिकॉज दिस इज देयर इन 12th. ओके. तो ए और बी तुम्हारी तरफ था. मैंने उसको नीचे किया और अभी देखो ए और बी नीचे आ गया. सॉरी. ओके. सो अगेन ए और बी, इट इज इन दी uppermost. Then I'm putting here and then A और B तुम नीचे की तरफ हो गया. So this is my 180. Okay. Again this is my, इसको क्या बोलेंगे? 270. 270. Okay, sorry यार, मेरे को सर्दी and all
Okay, again this is my 0, this is my 90, this is my 180, okay, this is my 270, and again I'm coming back to my original position, that is 360. okay, मैं ऐसे टिल्ट करके दिखाती हूँ. ओके, देखो B is pointing towards you, थोड़ा सा समझो, बस इतना ही है. तो यहाँ पे चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, इट विल बी मोर. ओके, नाउ यहाँ पे कम हो गया, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाता है, 0, बट चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम. देखो यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 0 हो गया, बट व्हाट अबाउट चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज मैक्सिमम. कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या बोल रही हूँ. यहाँ पे 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस था. You said it's decreasing, right? Like हाँ, 10 and then 0. बट चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स इज मैक्सिमम. अरे 10 से 0 हो रहा है तो मतलब देयर इज लॉट ऑफ चेंज, वेरी हाई चेंज. अरे 10 से 0 तक फॉल होता है, देन देयर इज अ चेंज ना. सी व्हाट यू से, आई एम सेइंग देयर इज अ डिक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, बट आई एम सेइंग देयर इज अ मैक्सिमम चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. देखो यहाँ पे जब मैं ऐसे स्ट्रेट पकड़ती हूँ तो कितने होते हैं, 10 होते हैं, और जब मैं ऐसे नीचे कर दूं तो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, इट विल बिकम 0. बट व्हाट अबाउट द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज मैक्सिमम. ओके, अब 0 से वापस इधर आ गया, अगेन माय चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज इंक्रीजिंग. कुछ समझ में आ रहा है क्या. ओके, हाउ टू एक्सप्लेन. सो चेंज, पहले यहाँ पे 0. ओके, सो पहले तो ये ऑब्जर्व करो, सो दिस इज माय 0 डिग्री, 0 पे माय मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज 10. ओके, व्हेन आई एम आस्ते 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 करके जब जा रही हूँ, ओके, दिस इज माय 90 डिग्री. नाउ एट 90 डिग्री माय चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज मैक्सिमम. कैसे, 10 से 0 तक गिरता है, 10 से 0 गिरना मतलब द मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज मोर. देन अगेन what will happen, it is going back to original position. again the change in magnetic flux क्या हो जाएगा, it will get decrease. क्यों, okay, पहले 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस था, अब मैंने उसको नीचे कर दिया तो 0 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गया, बट चेंज ज्यादा हो गया. अगेन आई एम गोइंग बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन. मतलब क्या है, अगेन आई एम गेटिंग चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. मतलब यहाँ पे क्या हो गया, 10 आ गया, मतलब 10 0 10. तो 10 से 0 क्या हो जाएगा, इट विल, द मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी मैक्सिमम, और फिर वापस नीचे आ जाएगा. ओके, आई एम सॉरी, आई हैव टू स्टॉप द वीडियो बिकॉज 2 people are using at the same time. ओके, तो यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला, व्हेन एट द 0 डिग्री, at 0 degree my change in the magnetic flux is increasing. जब 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब फ्लैट हो गया, हॉरिजॉन्टल. ओके, 0 डिग्री पे मैंने परपेंडिकुलर रखा था. ओके, सो 0 से जब हॉरिजॉन्टल हुआ, my change in magnetic flux is increasing. ओके, जब मैं हॉरिजॉन्टल से वापस परपेंडिकुलर रखा, my change in the magnetic flux is decreasing. सोचो, ओके, अभी ऐसे सोचो, यहाँ पे जब परपेंडिकुलर था, यहाँ पे 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस था, और जब वो हॉरिजॉन्टल हो गया तो 0 हो गया. अगेन जब परपेंडिकुलर किया तो व्हाट हैपेंस, अगेन वो 10 हो गया, तो अगेन द मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज्ड. नाउ व्हाट हैपेंस इन केस, अभी देखो, डिड यू अंडरस्टैंड दिस, इतना तो समझा, 0 to 180 समझा आपको, डिड यू अंडरस्टैंड, 0 to 180 समझा. Yes, ma'am. अदर्स, सानवी, प्रीति, आयुष, Yes, आपको ma'am. समझा, हाँ. पार्थ समझा आपको, यश, श्रेयस. अगेन I'm saying the same thing. जब मैंने परपेंडिकुलर रखा, that means it was a 0 degree. At 0 degree there were 10 magnetic field lines. Okay, जब आप परपेंडिकुलर से हॉरिजॉन्टल करते हो, मतलब फ्लैट कर दिया, the change in the magnetic flux was maximum. इसलिए 90 डिग्री पे you will be seeing a bulge, ऊपर की तरफ जा रहा है. Now again you are moving back to 180 degree, मतलब again you are moving back to perpendicular. तो क्या हो जाएगा, 0 से वापस 10 पे आ रहा है, मतलब ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया, तो क्या होगा, the magnetic field will be the change in the magnetic flux will decrease. Okay, now just let's observe 180 से 360. Okay, now if in this case if you observe, देखो यहाँ पे देखो, A to B, B to C and C to D, the current was flowing from A to B and C to D. जब तुमने ऐसे इंटरचेंज कर दिया, if you see, देखो यहाँ पे करंट कहाँ से फ्लो हो रहा था, A to B and C to D. जब तुमने वापस उसको फ्लैट किया, if you are able to see, the current is flowing from D to C and B to A. मतलब तुमने डायरेक्शन ही चेंज कर दिया करंट का. ओके, करंट जब ऐसे गोल गोल घुमाया तो क्या हो गया, द करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया, द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम D to C
and B2A, मतलब बेसिकली यहाँ पे कैसे बोलूं इसको, ओके देखो A to B ऊपर की तरफ था, C to D नीचे की तरफ था, कैन यू सी दिस, कैन यू सी दिस, ओके नाउ आई एम मूविंग डाउन, तो ऐसे फ्लैट हो गया तो 90 डिग्री पे आ गया. नाउ अगेन आई एम कमिंग हियर, नाउ हु इज डाउन, देखो यहाँ पे देखो ऊपर A to B था, A to B, B तुम्हारी तरफ है, A मेरी तरफ है, ओके जब मैंने ऐसे मूव किया दिख रहा है क्या, अगेन नाउ हु नीचे कौन चला गया, A and B. हाँ तो मेरा करंट फ्लो चेंज हो गया, सो इनिशियली माय करंट फ्लो ऐसे हो जाता है ना, तो ऐसे हो गया. सो व्हाट इज हैपनिंग, ओके नाउ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ओके कैसे दिखाऊं मैं इसको, ओके मैं एक काम करती हूँ, मेरे को इजी पड़ रहेगा, तो दिस साइड इज माय नॉर्थ एंड दिस साइड इज माय साउथ, ओके तो मेरे लिए इजी पड़ रहा है, तो नॉर्थ साउथ, ओके सो दिस इज माय नॉर्थ साउथ, ओके अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको मूव कर रही हूँ, सो इट विल बी, कैसे करूँ, बीच बीच में कोई ना कोई एंट्री मार रहा है, so if I moving this, okay तो my current will, नहीं I cannot show you, तुमको मेरे सामने ही रहना था, नहीं दिखा पा रही हूँ, सॉरी. ओके यहाँ पे देखो, इफ यू आर मूविंग C to D, इस तरफ जब लेके आते हो, एनीवेज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का ये नहीं आएगा, मतलब ओके इतना समझो कि क्योंकि ये ना सामने दिखाओगे तो मैं तुमको दिखा सकती हूँ, मैं नहीं दिखा सकती वीडियो में. सो व्हेन यू आर मूविंग, जब तुम्हारा मूवमेंट मतलब जो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में व्हेन यू आर जस्ट मूविंग डाउनवर्ड, योर सेंट्रल फिंगर विल बी showing the direction from A to B, okay again when you are moving downward, your central finger will be showing you the direction. तो इसलिए क्या होता है, that AC करंट होता है, मतलब ऊपर की तरफ जाता है, again it will come downwards. See if I can, मैं देखती हूँ कुछ वीडियो देखती हूँ, इधर देख सकते नहीं तो वीडियो देखते हैं, if I can show you the video. 3D दिखाना पड़ता है, हाँ ये देखो, I'll share the link. They are also not able to explain properly. Okay, so graphical representation is this only, जो हमारे टेक्स्ट बुक में वही है. In an opposite direction. Did you understand? So working doesn't, okay so working, I'll share the link with you, or YouTube ka link. Not every link they are able to explain at least this much. So what is happening when it is increasing, ऊपर जा रहा है, I already showed you कि how it is going 0 to 180 कैसे हो रहा है, and from 180 to 360 again it is going to maximum and then again coming down, but now it is in the opposite direction. So I already told you, if the current is moving from A to B, यहाँ पे हो रहा है, now the current is moving from B to A, मतलब direction ही change हो जाता है. Okay, so now you, if you ask me what is the question they will be asking you, first of all in now current syllabus you don't have a circuit diagram, आपको कोई circuit diagram नहीं है, so they'll not be asking you this question. They'll be asking you, there is no working is not there in your syllabus, पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है. Okay, so what exactly comes, तो यही आता है, the magnitude of induced EMF becomes maximum
when the magnetic flux linked with the coil reduces to 0. मैंने आपको बोला ना कि जब horizontal हो जाता है, जब वो straight हो जाता है, that time what will happen, magnetic flux linked with the coil becomes 0. उसी time पे induced EMF becomes maximum, क्योंकि there is a fall ना, मतलब 10 magnetic field line से 0 पे आ गया, so there is a big fall. That's the reason it is magnetism. So what is maximum? The change in the magnetic flux is maximum, hence the magnitude of induced EMF is also maximum. Okay, this happens when the plane lies in the direction of the magnetic field. मतलब कैसे, ऐसे. Okay, when the plane of the coil lies in the direction of the magnetic field, that time it happens, that time I'm getting maximum. Okay, and induced EMF becomes 0 when the magnetic flux line is maximum. मतलब when the plane of the coil is normal to the magnetic field, उस टाइम पे क्या होता है, the induced EMF becomes 0. Okay, इस टाइम पे 0 आता है. So this is 0, then this is what, 180, this is 360. तो ये 0 degree, this is 90, this is 180, 180, 0, 180, 270, 360. तो कब कब 0 मिलेगा तुमको, 0 डिग्री पे मिलेगा. ओके, 0 डिग्री पे, then 180 पे and 360 पे. So I hope you are understanding. So the induced EMF becomes 0 when the magnetic flux linked with the coil is maximum. जब प्लेन नॉर्मल रहता है, when it is perpendicular, उस टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत सारे पास हो रहे हैं ना अंदर, but induced EMF will be 0. Okay, and when it is, the plane is lying in the direction of the magnetic field, तब क्या होता है, the magnetic flux is 0 but the magnitude of induced EMF is maximum. ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यही आता है, बाकी कुछ नहीं आता है. Okay, what is the frequency of alternating current? ये भी this formula is not there in your syllabus, मतलब they can ask you कि किस किस पे depending है, but it is there in class 12th. Okay, the alternating current has a frequency equal to the frequency of rotation of coil. मतलब क्या, what is the meaning of frequency? इन साउंड में हमने क्या किया था, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड, है ना. तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ कॉइल का मतलब क्या है, नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 सेकेंड. ओके, सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट विल बी डिपेंडेंट ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल. मतलब जितना कॉइल तुम रोटेट करोगे उतना ही तुम्हारा फ्रीक्वेंसी मिलेगा तुमको. याद है, तुम बोलते हो ना 50 हर्ट्ज का तुम्हारा करंट का फ्रीक्वेंसी है, वही है. सो व्हाट इज E? E is what? Magnitude of induced EMF, which is dependent on time. It is expressed as E is equal to E0 sin 2 pi nt, and current is I is equal to I0 sin 2 pi nt. Now this whole derivation you will be studying in class 12th. Okay, यहाँ पे आपको सिर्फ फॉर्मूला दिया गया है. Okay, I0 and E0 क्या है? What is I0? They are the maximum values. Okay, what is 2 pi? नहीं पता होगा ना आपको. What is, okay, what is pi? 180. 3.1. नहीं, sorry, that's why I said ना, you will not know. What is pi by 2? 90. Pi means 180 degree, pi by 2 मतलब 90, pi by 4 मतलब 45. तो 2 pi मतलब क्या है, 360. This you are going to study in class 11th, trigonometry में सीखोगे आप. Okay, these are radians angle. तो 2 pi मतलब 360 degree. So what it's saying, जब 360 degree रहेगा, okay, so what will happen, तब EMF क्या होगा, 0, है ना. Okay, sin, okay, नहीं, what is sin 90? sin 90 क्या है, 1. इतना तो पता ही होगा ना, what is sin 90? It is 1. तो sin 90 is 1. That means जब 90, हाँ, जब 90 डिग्री होगा, ओके, जब 90 डिग्री होगा, when it is 90 डिग्री, मैंने अभी बोला था ना, देखो नहीं, ओके, लेट्स थोड़ा सा समझा रही हूँ, इतना कुछ नहीं. See, observe, when it is sin 90, that time you are going to get maximum value. When it is sin 0 is 0, sin 180 is also 0, sin 360 is also 0, sin 90 is 1, sin 270 is -1. तो यहाँ पे अप्लाई करो. तो यदि यहाँ पे 2 pi मतलब sin 360 क्या है, 0. That time you will not get any induced EMF. sin 90 होगा तो क्या होगा, you will get EMF, maximum EMF. ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, but understand one thing, that when it is 90 and when it is 270, that time you will be getting maximum. Okay, हो गया मेरा कन्वर्ट, मेरा हो ही गया प्रीति, जस्ट हो गया, just 5 minutes. So what is the, so how can you increase the maximum value? You can increase the maximum value by increasing the number of turns in the coil, or by increasing the area of cross section of the coil, or by increasing the speed of rotation. जितना जोर जोर से करोगे उतना तुमको करंट मिलेगा.
ठीक है. So what is the difference between DC and AC? DC क्या है? It is the current of constant magnitude. Alternating current क्या है? It is the current of magnitude varying periodically with time. Time के हिसाब से देखो ना, ऊपर नीचे, crest and trough. Okay, direct current it is flowing only in one direction. Alternating current it is reversing the direction periodically while flowing in the circuit. Direct current कहाँ से मिलेगा? ये एग्जाम में आ सकता है, अनुष्का अथर्व. It is obtained from a cell or a battery. It is obtained from a AC generator and mains. ठीक है. तो अपने घर में कौन सा आता है? वी आर गेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज. दैट मींस 50 टाइम्स वो प्लस होता है, 50 टाइम्स वो नेगेटिव होता है. ओके, ये आ सकता है क्वेश्चन ना. दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, ये वाला क्वेश्चन. व्हाट डू यू मीन बाय 50 हर्ट्ज? आई विल बी रिपीटिंग दिस अगेन, सो डोंट वरी. नाउ व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी? एसी का एडवांटेजेस क्या है? द वोल्टेज ऑफ एसी कैन बी इंक्रीज्ड बाय द यूज ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर. बेसिकली आप एसी को इंक्रीज कर सकते हो और डिक्रीज कर सकते हो, मतलब स्टेप अप एंड स्टेप डाउन. लाइक तुम्हारे घर में 220 वोल्ट का करंट आ रहा है, बट योर इलेक्ट्रिक बेल, जो तुम्हारे घर का बेल है, योर बेल विल नॉट वर्क इन 220 वोल्ट. द बेल रिक्वायर्स ओनली 6 वोल्ट. सो you require to step down, so this will be helpful. So in AC current you can do step up and step down, but in DC current you cannot do this. समझा आपको? प्रीति 5 मिनट. okay, so if DC is generated at the power generating station, the voltage cannot be increased for transmission or decreased. आप बढ़ा भी नहीं सकते हो, घटा भी नहीं सकते हो. okay, what is the difference between AC and DC? AC is working on electromagnetic induction का principle. DC is working on force acting on a current carrying conductor. ठीक है. what AC does, it is converting the mechanical to electrical. DC क्या करता है? electrical to mechanical. ओके, यहाँ पे क्या करते हैं? कॉइल इज रोटेटेड सो एज टू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट. यहाँ पे क्या होता है? द करंट इज फ्लोइंग विच इज मेकिंग द कॉइल रोटेट. यहाँ पे उल्टा काम चल रहा है, यहाँ पे कॉइल को रोटेट कर रहा है, कॉइल रोटेट होता है. यहाँ पे क्या होता है? द कॉइल इज रोटेटेड टू गेट द इलेक्ट्रिक करंट. ओके, एसी में देयर इज स्लिप रिंग, डीसी मोटर में देयर इज स्प्लिट रिंग. ठीक है. नाउ दिस, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, एंड देन वी आर स्टॉपिंग इट. ओके, व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन एसी जनरेटर एंड डीसी मोटर? ये भी एग्जाम में आता है. Okay, both are, in both the case what happens, the coil is rotating in the magnetic field between the pole pieces of a powerful magnet. Also in both of them there is a transformation of energy, okay, from one form to other form. So these are the similarities. ठीक है. तो एग्जाम में क्या आएगा? एग्जाम में ये सिमिलैरिटीज आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन डीसी एंड एसी करंट, डिफरेंस बिटवीन डीसी मोटर एंड एसी जनरेटर, यही आ सकता है. एंड दी ओके, सो वर्किंग विल नॉट कम, ये वर्किंग नहीं आता एग्जाम में. and they will be asking you what are the functions of brush and slip rings. ठीक है.